Hello everyone. Today's topic of discussion under the subject business law is offer and acceptance. Section 2A defines offer, or you may say the proposal, as when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to abstaining assent of that other to such an act or abstinence, he is said to make a proposal. थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है ना डेफिनेशन, लेकिन बहुत सिंपल है. इफ यू सी इट केयरफुली यू विल गेट द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन. What is said under section 2A? It says that proposal, or you may say the offer. When one person, for giving the offer, two parties are needed. One who gives the offer and the second one who accepts it. The person who gives the offer is known as offerer, and the person who accepts the offer is known as the offeree. When one person, that means the offerer, signifies to another, that means to the offeree or to the acceptor, his willingness, that means he is ready to do, that means for doing something, or abstaining from doing anything, or not to do anything. Abstaining means what? To restrict that other person for not doing some particular act, anything with a view, that means his objective or goal is to obtaining assent of that other person. Why he is giving such a proposal? He is giving such a proposal for obtaining the assent of that other person. That other person is offeree. To such an act or abstinence, he is said to make a proposal. So what we have learned, क्या है proposal, क्या है offer? एक ऐसा जहाँ पे offerer जो है वो offeree को एक अपना intention बताता है. किस प्रकार का intention? To do, यानी सामने वाले ने उसके लिए कुछ करना है या तो नहीं करना है. और ये इसलिए बताया जा रहा है कि सामने वाले ने उसको अपनी assent जो है वो देनी है. ठीक है? Mere my statement, I want to do something, it is not an offer. Why this is not an offer? Because this is my mere intention. My intention is not to get acceptance from you, so this statement cannot be said as a proposal, or you may say the offer. So two parties are needed for giving the offer. Second one must give his willing consent to the offerer. Then only we can say that there is a proposal. There are some elements of proposal. We will see what are those elements which states whether your statement is a proposal or it is a mere statement. First one is intention to create legal relationship. Sorry, the pen is not working. Intention to create legal relationship. Legal relationship. We already discussed this point when we discuss about the essential elements of contract, but we are again revising it to get it more clear. Intention to create legal relationship means what? Mere social invitations or social statements do not create legal relationship. एक एग्जाम्पल फिर से, मैंने एक ऑफर दी है कि आज मेरे घर में प्रोग्राम है, मैं आप सभी को बुलाने वाली हूँ, और समझ लीजिए मैंने आप सभी को नहीं बुलाया, आप में से किसी सिलेक्टेड ही पर्सन को बुलाया है. तो जिनको मैंने नहीं बुलाया है, they cannot file a suit against me. Why? Because here in between us there is no legal relationship. It is a social contract. So my statement cannot be said as a proposal. ठीक है? क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्योंकि मैंने एक mere statement दिया था, मेरे घर में प्रोग्राम है, मैं आप सभी को मेरे यहाँ पे प्रोग्राम में बुलाने वाली हूँ, लेकिन मुझे पॉसिबल नहीं हुआ आप सभी को बुलाना, इसलिए मैंने कुछ ही लोगों को बुलाया हुआ है. तो जिनको नहीं बुलाया वो मेरे अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, और इसीलिए ये जो मेरा इंटेंशन है
वो मेयर इंटेंशन रहता है और उसे हम लोग प्रपोजल में या ऑफर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा परफेक्ट? जैसे कि मैंने आपको ऑफर दी हुई है, ऑफर में मेरा पर्टिकुलर इंटेंशन मैंने बताया है और आपसे मैं चाहती हूँ कि आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है, और जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो देन ओनली बोथ द पार्टीज हैव अ राइट टू फाइल ए सूट अगेंस्ट ईच अदर। द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक टर्म्स। सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफर इज स्पेसिफिक terms. What do you mean by specific terms? Specific terms वो होती है जो impossible नहीं है, परफॉर्मेंस उसका कैसा नहीं होना चाहिए, impossible. Possibility of performance जब होगी तो ही हम लोग उसे कहते हैं specific terms. We already discussed this point when we were discussing about the elements of contract. Next one is different from answer to a question. Different from answer to a question. क्या मतलब होता है इसका? समझ लीजिए कि आपने मुझे कुछ क्वेश्चन किया हुआ है और मैंने उसका आंसर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में देखते हैं तो हम लोग उन्हें पूछते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, अगर हमें पसंद आ गया है तो उसने बताया कि ये इसकी प्राइस है। अगर उसने आपके क्वेश्चन को आंसर दिया हुआ है तो यू कैन नॉट से दैट यू हैव गिवन हिम ऑफर एंड ही हैड एक्सेप्टेड दैट ऑफर। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपने कोई उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के इंटेंशन से उसे प्राइस के बारे में नहीं पूछा था। इसलिए ऐसे जो क्वेश्चंस को आंसर आते हैं उसे हम लोग सिर्फ क्या कहते हैं, एक हम लोगों ने ये दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है और जिसका रिप्लाई हमें आया हुआ है, इसलिए ये भी हमारा प्रपोजल नहीं हो सकता है। सेकंड है इनविटेशन, इनविटेशन टू मेक ऑफर। क्या है इनविटेशन टू मेक ऑफर? एक इसका एग्जांपल जो हमने पिछले साल कंपनी लॉ में देखा था, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय द कंपनी। व्हाई द प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय द कंपनी? द प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। ये प्रोस्पेक्टस जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग डिसाइड करते हैं वेदर टू परचेज पर्टिकुलर शेयर्स ऑफ दैट कंपनी और नॉट टू परचेज, यानी हम लोग उस बेसिस पे ये डिसीजन लेते हैं। तो ये जो डिसीजन हम लोग लेते हैं इसलिए उन्होंने प्रोस्पेक्टस को इशू किया है। That doesn't mean that the company is offering you that much shares. लेकिन जब आप उसे पढ़ने के बाद कंपनी को बताते हैं कि we want to purchase this much amount of shares, this much quantity of shares, that means you are making an offer to the company. तो ऑफर कब होगी? जब आप वो प्रोस्पेक्टस को देखने के बाद कंपनी को ऑफर देते हो तब उसे ऑफर कहा जाता है। ये इनविटेशन टू मेक ऑफर डज नॉट मेक इन इटसेल्फ that it is giving an offer. फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारा? ऑफर टू बी कम्युनिकेटेड। क्या होती है ऑफर? क्या होनी चाहिए? मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या है भाई? क्यों कम्युनिकेट करनी है? मुझे आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है और मैंने आपको बताया नहीं, मैंने अपने मन के मन में सोच लिया कि मुझे आपको ये ऑफर देनी है और मैं ऐसा ही सोच रही हूँ कि आप ऐसे ही मुझे एक्सेप्टेंस दे दोगे। अरे जब आपको पता ही नहीं है तो कैन यू एक्सेप्ट ए ऑफर? बिल्कुल भी नहीं। तो जब ये पता नहीं है तो आप ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे और जब तक के मेरे ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है तब तक के हम लोग उसे ऑफर है करके नहीं बोल सकते हैं। इसलिए ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दोज पर्सन फ्रॉम whom you want to get the acceptance. And the last one is special conditions to be communicated. सिर्फ communicate करना this is not sufficient. What you have to communicate? If your offer contains some special conditions that must be communicated to the person. क्या है specific conditions? क्या होती है?
अगर आपको आपकी ऑफर को सामने वाले ने एक्सेप्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करना है, तो आपके कुछ स्पेशल कंडीशंस भी रहते हैं बिफोर एक्सेप्टिंग योर ऑफर, दैट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द ऑफरी। तो ऐसे जो कंडीशंस है, अगर वो आपने उन्हें कम्युनिकेट नहीं किए हैं, तो यू आर मेकिंग अ फ्रॉड विद दैट मीन्स विद द ऑफरी। तो ऐसे भी जो ऑफर्स रहते हैं या ऐसे भी आपकी तरफ से जो इंटेंशन सामने वाले को एक्सेप्ट करने के लिए बताए जाते हैं, तो वो अगर वैलिड ऑफर होनी चाहिए, यू मस्ट कम्युनिकेट दिस स्पेशल कंडीशंस टू द पर्सन। ठीक है, समझ में आया है? चलो फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। क्या है ऑफर? ऑफर ये एक इंटेंशन है, दैट इज इट इज अ प्रपोजल विच इज गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर ऑब्टेनिंग हिज कंसेंट और एब्स्टेनिंग फ्रॉम हिम फ्रॉम डूइंग समथिंग। और ये जब हम लोग ये बताते हैं सामने वाले को विथ एन इंटेंशन टू गिव टू गेट हिज एक्सेप्टेंस, तब हम उसे कहते हैं देयर इज एन ऑफर। ठीक है, और उसके क्या है कंडीशंस? कंडीशंस है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, यानी हमने ऑफर जो दी हुई है, अगर ये लॉ से अबाइड हुई अगर हम लोग चाहते हैं, तो देयर मस्ट बी लीगल रिलेशनशिप। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं कहते हैं लीगल टर्म्स में, क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई इंटेंशन नहीं रहता है। अगर सामने वाली पार्टी ने उसे फुलफिल नहीं किया, तो हम उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले सके। स्पेसिफिक टर्म्स क्या होती है कि आपने जो ऑफर दी है, ऑफर आप कैसे भी दे सकते हैं, हार्ड भी हो सकती है, यानी सामने वाला उसे जैसे एक्सेप्ट कर सकता है उस तरह से भी आप कंडीशंस उसमें डाल सकते हो। लेकिन वो कंडीशंस कैसी होनी चाहिए? वो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होगा, तो ऐसे जो ऑफर है वो लीगली अबाइड नहीं हो सकती, एंड दैट्स व्हाई that cannot be said as a offer. Then क्या है? Different from answer to a question. Different from answer to a question means if you are asking some question and that another person is replying to your question, you cannot say that he has accepted your offer. एग्जाम्पल हमने पहले भी दिया है, जैसे आपने कुछ पूछा हुआ है, सामने वाले ने फिर से हम लोग एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, A and B, these are two parties, एंड ए ने क्वेश्चन किया हुआ है बी को कि आपके पास ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, हम लोग प्रोडक्ट को ऐसा ले, चलो ठीक है कार ले लेते हैं, कि ये जो आपकी कार है अगर आप बेचना चाहोगे तो आप कितने में बेच सकते हो? ऐसा ए ने बी को पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बी ने सिंपली उसे कहा कि ठीक है मैं 2 लाख तक के उसको बेच दूंगा। तो यू कैन नॉट कंपेल बी टू सेल हिम हिज कार फॉर ₹2 लाख। क्यों? क्योंकि आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया हुआ है और उसने उसको सिंपल सा आंसर दिया हुआ है। तो गिविंग आंसर टू अ क्वेश्चन डजंट मीन दैट ही हैज एक्सेप्टेड योर ऑफर। देन क्या है? इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर मीन्स क्या है? हम लोग इनवाइट करते हैं सामने वाले पर्सन को कि आप हमें ऑफर दो, और हाँ, जब आप उन्हें ऑफर देते हो तो दैट पार्टी इज इन अ पोजीशन टू एक्सेप्ट योर ऑफर टू और रिजेक्ट योर ऑफर। जैसे मैंने अभी आपको कौन सा एग्जांपल दिया था? कंपनी के प्रोस्पेक्टस का। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है सो दैट यू कैन केयरफुली रीड द कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड ऑन दैट बेसिस यू टेक द डिसीजन फॉर बाइंग द शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी और नॉट बाइंग द शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। लेकिन कंपनी ने आपको ऐसा थोड़ी कहा हुआ है कि जो आप हमें अगर शेयर्स के इतने ऑफर देते हो तो हम लोग उसे एक्सेप्ट ही करेंगे। उन्होंने सिर्फ ये दिया है कि आप हमें ऑफर करो, बट द लास्ट राइट वेदर टू एक्सेप्ट योर ऑफर और नॉट टू एक्सेप्ट योर ऑफर इज रेस्ट विद द कंपनी। ठीक है, इसलिए इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर कैन नॉट बी ट्रीटेड इन इटसेल्फ एज एन ऑफर। क्या देखा है फिर हमने? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। You must communicate your offer so that the other party can accept your offer. Is that clear? क्या है? मैंने अगर आपको ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं किए है तो how you will accept my offer? बराबर है, इसलिए ऑफर must be communicated. And the last one is special conditions. Special conditions होती है, अगर आप वो उसे नहीं बताते हो तो भी आपकी जो ऑफर है वो कोर्ट ऑफ लॉ में लीगल नहीं मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ
जैसे मैंने आपको ऑफर दी हुई है और मैंने कहा हुआ है कि इतने प्रोडक्ट्स मैं आपको सेल करना चाहती हूँ और आपने उसे एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट यानी रिटर्न में अगर मैंने कुछ आपको दिए हुए हैं ऑफर और उसके बैक में मैंने स्मॉल लेटर्स में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसमें मैंने अपने स्पेशल कंडीशंस को फुलफिल किया यानी बताया है कि अगर आप फुलफिल करते हो तो ही आपका जो ये होगा मेरे अगेंस्ट में जो आप प्ली करोगे या सूट फाइल करोगे उसको फुलफिल किया जाएगा। और विदाउट रीडिंग अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हो देन दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रीडिंग ऑल द स्पेशल कंडीशंस। लेकिन स्पेशल कंडीशंस ऐसे देनी चाहिए कि सामने वाला उसे रीड कर सके और समझ सके। हाँ, लेकिन एक केस मैं बताती हूँ आपको, एक रेलवे की ये है, रेलवे टिकट इशू किया गया था एक इलिटरेट पर्सन को और उसके सामने लिखा हुआ था सी एट द बैक ऑफ टिकट और उसमें लिखा हुआ था कि आपका अगर कोई लॉस उसमें होता है तो वो आपको खुद को बेयर करना पड़ेगा, रेलवे कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल दैट पर्टिकुलर लॉस। लेकिन अगर कंपनी ने टिकट इशू किया हुआ है या रेलवेज ने टिकट इशू किया है तो रेलवे को मालूम नहीं है कि ये पर्सन लिटरेट है या इलिटरेट है। उन्होंने टिकट के पीछे सब कंडीशंस अपनी मेंशन की हुई है, इसलिए वो इलिटरेट पर्सन रेलवेज के अगेंस्ट में कोई केस फाइल नहीं कर सकता है कि मैं इलिटरेट हूँ और मुझे मालूम नहीं था कि ये उन्होंने टिकट के पीछे क्या लिखा हुआ है। लेकिन स्पेशल कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला उसे मालूम हो कि आपने कुछ कंडीशंस उसमें दी। सो थैंक यू वेरी मच।